انتہائی تشویشناک صورتحال اسلام آباد کے اندر پیدا کی گئی ہے، اور تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو شہر اقتدار ہے، یہ جو سیف سٹی کا شہر ہے، یہ جو کیمروں کا شہر ہے، یہ شہر جس کی آبادی 2.5 ملین اور 3 ملین کے درمیان کہیں ہے، اس شہر میں ایک آئی جی پولیس ہے، اس شہر کے اندر درجنوں ایس پی ہیں، اس شہر کے اندر درجنوں تھانے بن گئے، اس شہر کے اندر 22,000 لوگ ایک جلوس روکنے کے لیے اکٹھے کیے گئے، لیکن ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا ہے جو 25 مئی سے شروع ہوا تھا سائفر زدہ رجیم کے آنے کے بعد، اور وہ جاری ہے۔ اس کے جو 2 تازہ حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ رجیم آئی ہے، سارے ریاستی وسائل، تمام تر اداروں کی توجہ، ساری انٹیل، سارا فائنانس ریاست کا، وہ صرف عمران خان پہلے ہٹاؤ مہم پہ لگا تھا، اب عمران خان نکالو مہم کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ جو ملک میں دفاع کے انچارج وزیر اور وزارتیں ہیں، وہ سارا دن مضحکہ خیز بیان دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، غلط بیانیاں وہ فلور پہ کر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں۔ اس طرح کبھی کوئی ریاست چلی ہے؟ اس طرح کبھی کوئی سماج، لوگوں کا انسانی سماج کہلا سکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جب امریکہ بھاگا افغانستان کو چھوڑ کے، تو جو عمران خان کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے نہ صرف افغانوں کے دل جیتے پاکستان نے، بلکہ ساری دنیا کے دل جیتے۔ جب وہاں کوئی ایئر لائن لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، عمران خان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم انسانی بنیادوں پہ ایویکویشن کریں گے لوگوں کی، اور اس کے نتیجے میں جتنا عرصہ عمران خان رہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر تھا وہ محفوظ رہا۔ اس وقت مغربی بارڈر پہ ہمیں روز جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ایک انڈکلیئرڈ قسم کی ایک سچویشن ہے جس کے لیے میں بہر کا لفظ جان کے استعمال نہیں کر رہا، اور اس میں ہمارے بچے قربان ہو رہے ہیں، ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری بچیاں بیوائیں ہو رہی ہیں، اس میں ہماری ماؤں کی کوکھ اجڑ رہی ہے۔ تو یہ کیا حالات ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ صرف کسی طریقے سے، کس طرح سے ہم عمران خان کو نکالیں، اور کس طرح سے ہم جو پنجاب کی اور کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ ٹوٹنے دیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ ٹوٹتی تھی تو مخالف پٹاخے چلاتے تھے، مٹھائیاں کھلاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے۔ اس وقت خون کے آنسو گورنمنٹ رو رہی ہے، اس وقت وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ کوئی طریقہ ہو گورنمنٹ نہ ٹوٹے۔ اس کی وجہ صرف آپ کا خوف ہے، عوام کا خوف ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا لوٹے بنانے کے بعد جو پنجاب میں اقتدار ملا، اب تو لوٹا بھی بیچارہ بیکار ہو گیا، وہ اس کا پیندہ خالی ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے جو ججمنٹ کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے نتیجے میں لوٹے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوٹے کس طرح ہارے، اس کے بعد عمران خان کی جہاں پکچر گئی، وہ 7 سیٹیں 8 میں سے کس طرح وہ جیتے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں، چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں انشاءاللہ، کہ جب 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا میئر دے گی، اور یو سی کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں، میں علی اوان زیادہ کمپین کر رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے میری، تو میں نے جا کے خود جو ماحول دیکھا ہے وہ یو سی 1 سے لے کے یو سی 101 تک انشاءاللہ العزیز ساری جگہ پی ٹی آئی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر I-9 کے علاقے میں ایک چھوٹا بچہ، اس کو مار کے، جس طرح وہ انسان نہیں ہے اس کو لٹکایا گیا، کیا کیا ہے اسلام آباد کے اس سارے نظام نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے؟ کہاں ہے وہ سیکیورٹی؟ اس کے بعد آپ کی کلیگ، جہاں ہماری ینگ لیڈیز کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں، ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہے،
शी इज़ हाईली एजुकेटेड वुमेन, यंग वुमेन, और उसके घर में कल जो वाक़या हुआ ये इंतहाई संगीन मामला है, इसलिए कि 2 अदालतों में चल रहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए, वर्किंग जर्नलिस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है और एक चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तजावीज़ दी जाएं कि किस तरीके से जर्नलिस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, बाकायदा कानून बना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान के दौर में, और उसके नीचे ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें आज हम आए थे, रात को हमारी एक मीटिंग थी जिसमें इमरान खान शरीक थे, अली अवान भी थे, मैं था, असद उमर थे, और उसमें असद उमर साहब और अली जैदी उन्होंने ये पॉइंट लिया और फिर इमरान खान ने हुक्म दिया कि मैं जाऊं और मेरे साथ अली अवान हो, और हम आए हैं फैमिली के पास। हमने इनको यकीन दिलाया पूरा कि हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में आपके साथ खड़ी है, जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है। और ये जो खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है ये मर्दों तक महदूद रहती तो और बात है। ये एक यंग जर्नलिस्ट जो काम करने वाली थी उसके घर में आए, दीवार इन्होंने कूदी, 2 लोग थे, इस इलाके में सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के पास कोई बहाना नहीं है कि वो ये कहें कि हम लोगों को नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से और जो कैमरों का जो निज़ाम लगा हुआ है वो जहाँ से चले, किस जगह पहुँचे, वहाँ से किस गली में घुसे और किस घर में घुसे, ये सारा कुछ अब ऑनलाइन निकाला जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे मुजरिम बेनकाब किए जाएं। इनकी जो FIR हुई है वो क्या FIR हुई है वो थोड़ी देर में हमारे पास पहुंचेगी तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। उसके साथ ही फैमिली के मशवरे से हमने फैसला किया है कि हम शिफा यूसुफजई की तरफ से हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ हम फरीक बनेंगे जो वहाँ पे पिटीशन चल रही है और वहाँ पे जो एक 184 की कार्रवाई बल्कि चल रही है उसके अंदर। उसके साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से हमने लॉ बनाया था बड़े दर्दमंदी के साथ और इस तवक्को के साथ कि जो रियासत के इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, पुलिस हो गई, FIA हो गई, दूसरे हो गए, वो सारे मिल के जर्नलिस्ट को महफूज बनाएंगे। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद अरशद शरीफ को शिकार किया जाता है। शहीद करना और बात है, शिकार करना दूसरी बात है। और उसके साथ ही ये भी बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े लीडर जिसने 3 पार्लिमानी रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि वो 8 नशिस्तों से खड़ा होता है, जिन नशिस्तों पे उसके कागज़ होते हैं वो नशिस्तें वो जीत जाता है। दूसरा रिकॉर्ड उसका ये है कि वो दुनिया का वाहिद आदमी है जो सबसे ग्रेट हुआ था, जिसमें मेरे इलाके के एक उस वक्त के एक कम्युनिस्ट जो थे दादा अमीर हैदर वो भी शरीक थे। चाइना के अंदर चेयरमैन माओ जेतुंग ने उन्होंने खुद लीड किया। 350 किलोमीटर के करीब वो इलाका था कि जब हमला हुआ इमरान खान शदीद जख्मी हुए, इमरान खान निकल के, लीडर नहीं है लेकिन मार्च फिर भी चल रहा है। ये दूसरा रिकॉर्ड है जो उसने बनाया है। और तीसरा रिकॉर्ड ये है कि जख्मी होने के बावजूद वो थका नहीं। लोग कहते थे कि लोग थक जाएंगे, PTI थक जाएगी, वो नहीं थका। और 65 के करीब उसने बड़े जलसे किए, हर जलसे में पहले से ज़्यादा लोग आए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो हकीकी आज़ादी की मंजिल है ये कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको कोई, जिस तरह से हमने फैसला किया उसके रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है। मैं शॉर्टली उस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इशू है वो इस वक्त वो आर्टिकल 9 का है। आर्टिकल 9 उसके अंदर प्रोटेक्शन टू द लाइफ, रेपुटेशन, दोनों चीज़ें, बेइज्जती भी ना हो किसी खातून की, उसकी इज्जत की जाए और उसका क्या होना ज़रूरी है, सिर्फ खातून होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की शहरी होना भी आर्टिकल 4 के मुताबिक ज़रूरी नहीं है। ये आइनी हुकूक उसको भी हासिल है। ये दुनिया का ऐसा अच्छा आइन हमने बनाया था, लेकिन अब सरजमीनें बेआइन कर दी गई है, इसकी परवाह कोई नहीं करता, इसको रोंदा जा रहा है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि हम दोनों अदालतों से ये दरख्वास्त करेंगे जाके, हाई कोर्ट में हम जुमे के दिन जा रहे हैं, हम FIR लेके और बाकी कॉपीज़ लेके इंशाअल्लाह अज़ीज़ कार्रवाई करेंगे। इन मुजरमों को बेनकाब करना इसलिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में हमारी एक और वर्कर, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, वो भी आपके सामने आएगा।
राबिया उनका नाम है। वो गाड़ी में जा रही थी तो जो हैंड गन है उसके साथ उनका शीशा तोड़ा गया और उनको जख्मी किया गया चेहरे पे। तो ये टारगेटेड ऑपरेशन लगता है। और वो लोग जिनको इसलिए इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पुलिस के अंदर लाया गया है बाहर से कि वो पीटीआई को मारें, वो जमहूरियत को मारें, वो आइन मारें, वो लोगों की उम्मीद मारें, वो लोगों की आरज़ूएं आदर्श उनके मारें और उनको परेशान करें ताकि मैदान खाली हो नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ को पता है कि वो इसलिए नहीं आ रहे, जिनको नहीं समझ आती थी मैं अभी आपको समझाने लगा वो नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे। नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह आइन का आर्टिकल 264 है। ये गौर से आप निकाल के आइन पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आइन का आर्टिकल 264 है जिसके डी और ई में लिखा हुआ है 264 में कि अगर कोई कानून ख़त्म भी हो जाए, रिपील हो जाए, तो रिपील के बावजूद भी जो सज़ाएं उसके नीचे हुई हैं वो कायम रहती हैं। जो फोर फीचर और जुर्माने जायदादें जब्त हुई हैं वो भी कायम रहती हैं। और दूसरी बात, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसके सेक्शन 6 में लिखी हुई है कि ये सज़ाएं बरकरार रहेंगी। इसलिए नवाज शरीफ जब भी आएगा सीधा अडियाला जाएगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा अडियाला के कैदियों के साथ। इसलिए कि सज़ा याफ्ता आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता। उसका भाई आए जोर आजमाई करे, उसको भी लाएं, बाहर निकालें, देखें वो उनको अपनी औकात और हैसियत सियासी जो बाकी रह गई है वो पता लग जाएगी। शदीद तरीन अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं जो शिफा यूसुफजई के घर पे हैरेसमेंट हुई, इनके घर को फलंगा गया। ये आइन के 2 आर्टिकल हैं, एक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो रियासत के रहनुमा उसूल हैं उनमें आर्टिकल है और दूसरा बुनियादी हुकूक में 2 आर्टिकल और हैं। 3 आर्टिकल हो गए टोटल। वो ये है कि प्राइवेसी ऑफ होम, खातून की आबरू, उसका तहफ़्फ़ुज़, फैमिली की आबरू, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़। इसी को आम ज़ुबान में जब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं तो हम इसको चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तो इसलिए जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान हैं जिनको लाया गया है, जो पुलिस मुकाबलों में पहले भी बड़े शरीक रहे हैं, जो मुल्ज़िम लाए गए हैं ताकि नीचे से जो ऊपर प्रमोशन होती उनको रोक के अपने बंदे बिठाए जाएं, वो उनके लिए भी ये चैलेंज है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस हुकूमत को और वो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको लाजमन बेनकाब करेंगे और उसके लिए कोई कानूनी और आइनी रास्ता हम ऐसा नहीं होगा जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सामने लाए। और मैं जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो हुकूक हैं उसके लिए याद रखिएगा, आप इकट्ठे हों, इस तकसीम में मत पड़े कौन किस ग्रुप में है। अब अगर बात ख़वातीन तक पहुँच जाए, बच्चियों तक पहुँच जाए और जलसे तक ना रहे, बात घरों तक पहुँच जाए, चार दीवारी पामाल हो जाए, चादरें खींचने की कोशिश करे जो कोई चार दीवारी के अंदर घुसेगा, वो किस नीयत से घुसा है कोई। तो वो जो आए थे उन्होंने ये सामने आपके क्वार्टर है उन जो बैक साइड, इस क्वार्टर में जो चौकीदार थे घर के अंदर उनको बहुत शदीद मारा, टांग भी उनकी ज़ख्मी की और फिर उन्होंने यहाँ चादरें अंदर जो लॉन है उसके अंदर अपनी रखी, वो पता नहीं क्या करने आए थे, और मुंह के ऊपर उन्होंने यहाँ आके नकाब लगाए और बाकी पूरा एरिया यहाँ से निकले तो वो बाहर निकले, पूरे एरिया में उनको तलाश किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी तरफ से शदीद तरीन मज़म्मत, और अगर इसके ऊपर किसी जगह कोई और इस तरह का जुर्म होता है, इस जुर्म समेत तो उसके ज़िम्मेदार इस्लामाबाद की वो सियासी इंतज़ामिया होगी और सियासी पुलिस अफसरान होंगे जिनको सियासत के लिए लाया गया, शहरी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। थैंक यू। अक्सर पंजाब की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आज क्या होने जा रहा है, जो इजलास गवर्नर साहब ने बुलाया है, कानून और आइन क्या कहते हैं इसके ऊपर? थैंक यू टिका। और भी कोई सवाल है तो पूछ ले। पंजाब पे इन्होंने सवाल पूछा, या मैं बता दूं। सनावला साहब ने कहा है कि अगर ना हुआ, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो सीएम हाउस बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और इमरान खान ने गुज़श्ता इसी हफ्ते में एक तकरीर की जहाँ इस्लामाबाद में भी स्क्रीनें लगी हैं। सियासी यहाँ पर मामलात और सियासी चीज़ें चल रही हैं, इसके बावजूद अफनान पार्क में 100 से ज़्यादा लोग भी नहीं नजर क्यों ना आए? ये नाकामी नहीं है? बल्दियाती इलेक्शन तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान हाजिर है, कौन के साथ कितने सीटें हैं, कौन
जीतता है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं रिज़ल्ट कोई हमें जो तवक्को है वो हम 101 में से 101 हमारी तवक्को है। बाकी वोटरों का काम है कि वो चोर को देना चाहते हैं वोट, उचक्के को देना चाहते हैं, या चौकीदार को देना चाहते हैं, और या खिदमत गुजार को देना चाहते हैं। वो चौकीदार और खिदमत गुजार की तरफ इंशाल्लाह कहीं जाएंगे। कोई डाउट है कि अच्छा, बलदियाती इलेक्शन जी ना हो? अब बलदियाती इलेक्शन ना हो उसके हवाले से भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जो यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई है वो तब्दीलियाँ हमारे कागज़ों में वो जजमेंट एक